Hello students, we are going to start lecture number 3, class 11, subject English, book snapshots, lesson number 1, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saran. Difficult words we are going to discuss today are dawn, D-A-W-N-E-D, it means begin, leaped to make a large jump, leaped into, quick action, leap out, to move quickly or suddenly. Here we can see that leap is a phrasal verb and its meaning is changing with the change in the preposition. So, till today, in the last 2 lectures, we have read that Aram is sleeping at his home and Murad came to bring him out for a horse ride. Aram is thinking and analyzing that his family and his cousin Murad are not in condition to buy a beautiful horse, but even then, because they are not going to sell it, so they are going only for a ride. So their moral is allowing them that there is no harm in having a ride and we will put the horse back to the owner. Here we have read up to the page number 5 and I am going to start. I leaped to the back of the horse. It is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th line. 8th line, page number 5. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. मैं एकदम से छलांग लगाकर घोड़े के ऊपर चढ़ जाता हूँ और उस समय के जो डर है वो इमेजिनेबल है, मतलब मैं महसूस कर सक रहा हूँ जो डर वो मैं बता नहीं सकता. The horse did not move. घोड़ा हिला भी नहीं. Kick into his muscles, my cousin Murad said. मेरे cousin मुराद ने कहा कि उसके मसल्स में किक करो. I have told you that with the stand on the back of the horse, we are having a place to put our heels and we kick by the help of those heels. And my brother Murad said, kick into his muscles. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. तुम किस इंतजार में हो? हमें ये घोड़ा वापस नहीं रखना है सबके जागने से, सबके उठने से पहले जहाँ से मैं इसको लेकर आया था. I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted, then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickren Halabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. Now see, because Aram was not very good in horse riding, so when he kicked, the horse started running and then it began to run. I didn't know, उसे कुछ नहीं पता था क्या करना है. Instead of running across the field, फील्ड के किनारे रनिंग करने की बजाय घोड़ा फील्ड के अंदर घुस गया और वाइन्स यानी कि ग्रेप, जहाँ पे बहुत बड़े लार्ज लैंड पे वाइन्स उग रहे हैं, ग्रेप्स उग रहे हैं, वहाँ पे घोड़ा उसके अंदर घुस गया और मुझे गिरा भी दिया, बट कंटिन्यूड रनिंग, बट घोड़ा दौड़ता रहा. माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू. अब मेरा भाई मुराद आ गया जहाँ उसी रोड पे जहाँ से घोड़ा दौड़ गया था. उसने कहा मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हो रहा हूँ. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स. यू गो दिस वे एंड आई विल गो टू दिस वे. इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर. उसने कहा कि मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा हूँ, मुझे घोड़े की चिंता है. तुम उस रास्ते से जाओ, मैं इस रास्ते से जाता हूँ, और अगर वो तुम्हें मिल जाता है तो तुम उसके ऊपर आराम से चढ़ना, और मैं बहुत नज़दीक ही हूँ तुम्हारे, ज़्यादा दूर नहीं रहूँगा तुमसे. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. मैं रोड पर ही रहा घोड़े को ढूंढने के लिए और मेरा भाई मुराद इरिगेशन डिच के अंदर चला गया.
It took him half an hour to find the horse and bring him back. उसे आधा घंटा लगा घोड़े को ढूंढने में और वो उसको लेकर वापस आया. It took him half an hour to find the horse and bring him back. All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What will we do? I said. उसने कहा कि चलो कूद कर ऊपर चढ़ जाओ. But सारी दुनिया सब लोग जाग चुके हैं. अब हम क्या करेंगे? मैंने उससे ऐसा कहा. Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. अब उसने कहा, किसने? मुराद ने, क्योंकि आराम इसमें ये कह रहा है कि कैसे चढ़ूं, अब तो सारी दुनिया जाग चुकी है, सब लोग जाग चुके हैं. तो मुराद कह रहा है कि या तो हम इसे कहीं छिपा देंगे या जब तक सुबह नहीं हो जाती, या फिर हम इसको वापस रखाएंगे जहाँ से मैं इसको लेकर आया था. He didn't sound worried and I know he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. उसने ये ऐसा नहीं शो किया कि उसको जरा सी भी चिंता है. किसने? मुराद ने. और कैसा, जितना मैं उसको जानता हूँ, मुझे नहीं लग रहा था कि वो उसको वापस भी करके आएगा, किसी भी कॉस्ट पे वापस नहीं करेगा. Where will he hide him? I said. हम उसे कहाँ छिपाएंगे? I know a place, he said. उसने कहा कि मैं एक जगह जानता हूँ. How long ago did you steal this horse? I said. मैंने कहा कब तक तुम इस हॉर्स को चोरी करके रखोगे? It suddenly dawned on me and he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed for it. अब वो शुरू ही हो गया मुझे बोलने पर कि मैं तो सिर्फ ये तुम्हारे लिए लेकर आया था और जब तक हमारा हॉर्स राइड का शौक पूरा नहीं होता हम तब तक इसको छिपा के रख सकते हैं. Who said anything about stealing a horse? He said. तुम्हें किसने कहा कि हॉर्स चुरा के लेकर आया हूँ? कौन कह रही है? मुराद. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो मैंने पूछा, यानी कि आराम ने पूछा, तुम कब तक इस पे एवरी सुबह राइडिंग करते रहोगे? Not until this morning, he said. कम से कम आज की सुबह तो नहीं. उसने कहा. Are you telling the truth? I said. मैंने पूछा, तुम सच कह रहे हो? Of course not, he said. But if we are found out, that's what you were to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. उसने कहा अगर हम पकड़े गए जैसा कि तुम कह रहे हो, कहता तो मैं नहीं चाहता कि हम पकड़े जाएं और हम झूठे पाए. और वैसे तुम्हें पता है कि हमने आज से राइडिंग स्टार्ट कर दी है. All right, I said. मैंने कहा ठीक है. मतलब वो आराम से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम झूठ भी ना बोले और ये घोड़ा भी छिपा रहे और हम एवरी मॉर्निंग राइडिंग भी एंजॉय कर सके. कुछ इस तरह का प्लान they were making. He walked the horse quietly to the barn of deserted vineyard, which at one time had been the pride of farmer named Padvejian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. अब हम चलते रहे उस घोड़े को लेकर चुपचाप से. एक बैरन जगह थी जो कि डेजर्ट एरिया था और उसके आसपास वेनियार्ड से यानी कि अंगूर के खेत थे जहाँ पे जो कभी उस एक पदवैज्ञान का नाम के किसान का प्राउड हुआ करता था वो यानी कि वेनियार्ड. और कह रहे हैं कि वहाँ पे अब कुछ ओट्स और कुछ ड्राई अल्फाल्फा रह गए हैं. We began walking home. अब हम घर के लिए चल पड़े. It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. कहता ये बहुत आसान नहीं होता. घोड़े के साथ बहुत नाइसली बिहेव करना पड़ता है. At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way to be the horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horse is understanding. उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि एक बार तो ये जंगली तरीके से भागते हैं, बट उसके बाद मैं घोड़े के साथ वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि घोड़ा मेरे लिए करे, यानी कि मुझे राइड के लिए लेकर जाए. हाउ डू यू नो? आई सेड. मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता है? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड. उसने कहा हॉर्सेस के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग है. यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग? हाँ वो तो सही है पर किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है? ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. एक बहुत सरल और ईमानदार. वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स. वेल मैंने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि एक घोड़े के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाई जा सकती है. I went home and ate a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Kosar
came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. Another visitor arrived, a farmer named John Barrow, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at least sighed sadly. He said, "My white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it." Now they are sitting in the courtyard. अपने घर के आंगन में बैठे हैं जहाँ पे उनके अंकल को सर्वो आते हैं कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए, और वहाँ पे पास में ही बैठ जाते हैं और अपने पुराने देश के पुराने दिनों को याद करते हैं। फिर एक और विजिटर आते हैं वो एक किसान है जिनका नाम है जॉन बायरो, और वो वैसे एशेरियन हैं, बट अकेलेपन की वजह से वो अमेरियन बोलना सीख गए हैं। तो मेरी मदर उनके लिए भी कॉफ़ी और टोबैको लेके आती है, जिसको वो सिगरेट में रोल करते हैं और एक सिप चाय का ले रहे हैं, साथ में स्मोकिंग कर रहे हैं। और लास्ट में उन्होंने ये कहा बहुत उदासी से कि जो मेरा घोड़ा 1 महीना पहले चोरी हो गया था वो अभी भी चोरी ही है, अभी भी मिला नहीं है। आई couldn't understand it. मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। माई अंकल कोसर्वो became very irritated and shouted, "It's no harm." मेरे जो अंकल थे कोसर्वो वो बहुत इरिटेट हो गए, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, देयर इज नो एनी हार्म। व्हाट इज द लॉस ऑफ हॉर्स? हॉर्स के खोने का क्या डर है, क्या नुकसान है? हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड? व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स? क्या हम सब ने अपना घर नहीं खोया, तुम एक हॉर्स के लिए रो रहे हो? दैट मे बी ऑलराइट फॉर यू, द सिटी डिवेलर टू से, जॉन बैरो सेड, बट व्हाट ऑफ माय Surrey? व्हाट गुड इज Surrey विदाउट अ हॉर्स? उसने कहा तुम्हारे लिए ठीक होगा, बट मेरा सर्वाइवल है घोड़े के साथ, और उसका नुकसान हो गया है, तो मैं तो बोलूँगा ही। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल कोसर्वो रोड। अगेन अंकल कोसर्वो चिल्लाए कि नो नीड टू पे अटेंशन, आई वॉक 10 miles टू गेट देयर, जॉन बैरो सेड। यू हैव लेग्स, माई अंकल कोसर्वो शाउटेड। तो जॉन बैरो ने कहा कि मैं उसके लिए 10 मील चल कर गया। तो उसने कहा तुम्हारी टांगें तो तुम चलोगे ही। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। फार्मर ने कहा कि मेरी लेफ्ट उसमें टांग में दर्द है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल कोसर्वो रोड। वो अगेन बोले कि पे नो अटेंशन, सी हियर अंकल कोसर्वो इज रियली अ वेरी इग्नोरेबल टाइप ऑफ बिहेवियर शो करते हैं। बिकॉज जब उनके घर में आग लगी, उनके बच्चे ने बताया था इन द लास्ट लेक्चर, इन डे 2 लेक्चर, तब भी वो इग्नोर कर गए कि देयर इज नो हार्म। अगेन ही सेइंग देयर इज नो हार्म। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। किसान ने कहा वो घोड़ा $60 का था मेरे लिए। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल कोसर्वो सेड। तो मेरे अंकल कोसर्वो ने कह दिया मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है, मैं थूकता हूँ पैसों को। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. अब क्या हुआ कि अंकल कोसर्वो उठे और एकदम से तेज कदमों के साथ घर से बाहर निकल गए, और जो स्क्रीन डोर था उसको थोड़ा सा ऐसे झुला गए, जैसे गुस्से में उठ के इंसान जाता है वो उसको जोर से इस तरह से झुला जाते हैं दरवाजे को। माई मदर एक्सप्लेन्ड, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड। अब मेरी मदर कहना शुरू करती हैं कि वो भी कभी, कौन, अंकल कोसर्वो was having a very gentle heart. It is simply that he is homesick and such a large man. ये भी एक बात है कि एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी है, बट उसको होम सिकिंग है, मतलब वो याद करता है उसको। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस। फार्मर चला गया और मैं भी अपने कजन मुराद के पास अगेन चला गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा था और एक बहुत ही छोटे से पक्षी का एक विंग रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, जो कि उस विंग की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, और वो बर्ड से बात भी करता। व्हाट इज इट, ही सेड। उसने कहा ये क्या है? द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड। ही विजिटेड आवर हाउस, ही वांट्स हिज हॉर्स, यू हैव हैड इट अ मंथ, I want you to promise not to take it back until I learn to ride. उसने कहा कि जॉन बैरो जो किसान है जिसका घोड़ा तुमने पिछले 1 महीने से अपने पास रखा है, वो आज हमारे घर पे आया था, और अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अभी तक घोड़ा वापस नहीं किया, तो जब तक मैं भी राइडिंग ना सीख जाऊँ
घोड़ा वापस नहीं करना। देखो दोनों भाई कैसे अपनी इमेजिनेबल एक जो वर्ल्ड था उसको अपने एक ड्रीम को ट्रू करने पे चले हैं। दे आर प्लानिंग। वो अब छोटा भाई जो कि थोड़ी देर पहले ये सोच रहा था कि परहैप्स दिस इज नॉट गुड फॉर द रेपुटेशन ऑफ द गैरोगलिनियन ट्राइब, बट अब वो भी उसको कह रहे हैं कि तब तक वापस नहीं करना जब तक मैं रेडी ना सीख जाऊं। ऐसे ही होता है ना भाई। The farmer John Barrow said he visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. It will take you a year to learn to ride. My cousin Murad said. मेरे cousin ने कहा मुराद ने कि तुम्हें तो पूरा साल लग जाएगा सीखने के लिए। We could keep the horse a year. तो हम एक साल के लिए घोड़ा रख लेंगे। My cousin Murad leaped to his feet. वो अपने पैरों के ऊपर एकदम से उछलकर खड़ा हो गया। Sudden action था। Leaped to sudden quick action. My cousin Murad leaped to his feet. What? He roared. चिल्लाया कि क्या? Are you inviting a member of the Garogalian family to steal? क्या तुम Garogalian tribe के एक फैमिली मेंबर को चोर कहलाना चाहते हो? The horse must go back to its true owner. घोड़ा जल्दी ही उसके ओनर के पास होना चाहिए। When I said, मैंने पूछा कब? In 6 months at least, the latest, he said. कम से कम 6 महीने बस, उसके बाद नहीं, उसके बाद वो वापस चला जाएगा। I threw the bird, he threw the bird into the air, और उसने कहते कहते वो पक्षी हवा में उछाल दिया। The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. बर्ड ने कोशिश की, 2 बार गिरा भी, पर वो पक्षी फिर दोबारा ऊंचा और सीधा उड़कर चला गया। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn and the deserted vineyard where we are hiding it and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. हर सुबह हम घोड़ा लेकर आते, मेरा भाई मुराद उस पर राइड करता, और जब भी मेरी टर्न आती तो घोड़ा मुझे गिराता, मुझे वाइन के खेतों में से भागना पड़ता, और वो अगेन मुराद उसको पकड़ कर लेकर आता और उस पर राइड कर लेता। One morning on the way to Fadvejian deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow, who was on his way to town. अब एक दिन जब हम उनसे वापस छिपाने जा रहे थे, तो जॉन बैरो रास्ते में मिल गए। Let me do the talking. मेरे कज़न मुराद ने कहा, मुझे बात करने देना, मुझे पता है किसानों से कैसे बात करते हैं। Good morning, John Barrow. My cousin Murad said to the farmer. मेरे कज़न मुराद ने किसान से कहा, Good morning, John Barrow. The farmer studied the horse eagerly. अब फार्मर जिसका कि घोड़ा था, उसने उस हॉर्स को अच्छे से देख लिया। Good morning, son of my friends. He said, What is the name of your horse? My heart, my cousin Murad said in Armenian. अब वो घोड़े की तरफ देख रहा है, उसे पता है कि वो घोड़ा उसका है, वो उसको पढ़ने की कोशिश कर, तो उन्होंने कहा तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? तो मुराद ने कहा माई हार्ट। अ लवली नेम, जॉन बैरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, मे आई लुक इनटू हिज माउथ। अब जॉन बैरो कह रहा है कि इतना ही प्यारा घोड़ा मेरा भी हो सकता है जो चोरी हो गया था, क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ? Of course, Murad said. मुराद ने कहा हाँ जरूर देखिए। The farmer looked into the mouth of the horse, tooth for tooth. He said, I would swear it is my horse if I didn't know your parents. उसने कहा कि मैंने अपने घोड़े को पहचान लिया है और मैं इसको अवश्य अपना कहता अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता होता। यहाँ पे क्या है, जो जॉन बैरो है, he is known to the true reputation of the Garogalian family, Garogalian tribe, that they were famous for the last 11 centuries for their honesty and for their righteousness. तो वहाँ पे उस रेपुटेशन के चलते वो उस घोड़े को अपना नहीं कह पा रहा है। Yet the horse is the twin of my horse. जबकि घोड़ा बिल्कुल मेरे घोड़े का जोड़ना जैसा दिखता है। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. अब एक शक्की आदमी, मतलब उसको शक हो गया था, उसने अपनी आंखों पे भरोसा करने की बजाय अपने दिल पे भरोसा किया। उसे लगा कि जो गैरोगलिनियन ट्राइब के लोग हैं वो चोर नहीं हो सकते, और उसने कह दिया कि ठीक है, गुड बाय माय डियर यंग फ्रेंड्स, मेरे जवान दोस्तों, बाय। गुड डे, जॉन बैरो, माय कज़न मुराद सेड।
Early the following morning, we took the horse to John Barrow's vineyard and put it in the barn. The dog followed us around without making a sound. The dogs, I whispered to my cousin Murad, I thought they would bark. They would at somebody else, he said. I have a way with the dogs. My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose and patted it, and then we went away. That afternoon, John Barrow came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. I don't know, what do you think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too. I thank God. My uncle Koservo, who was in the parlour, became irritated and shouted, quiet, man, quiet, your horse has been returned, pay no attention to it. अब अगली सुबह मैंने और मेरे कज़न मुराद ने वो घोड़ा वापस जॉन बायरो के डेजर्ट बार में बांध दिया, और वहाँ पे हमें कुछ डॉग्स ने फॉलो करने की कोशिश की, बट जैसा कि हमने सोचा था कि वो भौंकेंगे, बट वो नहीं, उन्होंने बार्किंग नहीं की। तो मेरे कज़न मुराद ने घोड़े को प्यार किया, उसको अपने बाजू में लिया, थोड़ी सी टैपिंग की, उसकी नोज़ के साथ नोज़ रब की, और ये सब करके उन्होंने वो घोड़ा वहाँ पे वापस छोड़ दिया। और मिस्टर जॉन बैरो दोपहर के टाइम हमारे घर पे आए, जहाँ उन्होंने मेरी मदर को वो घोड़ा दिखाया, और उन्होंने कहा थैंक गॉड, वैसे ये घोड़ा पहले से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है, इस घोड़े का टेम्पर भी पहले से ज़्यादा सूदिंग हो गया है, और मैं भगवान को बहुत बहुत शुक्र करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि घोड़ा वापस मिल गया है। तो माई अंकल को सर्वो, जो कि पास में ही बैठे थे, वो फिर से चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, घोड़ा मिल गया, नो डोंट पे एनी अटेंशन टू इट। और इस तरह से दिस चैप्टर हैज़ बीन ओवर्ड नाउ। दिस चैप्टर टेकन 3 days, 3 lectures to be completed. I have tried my level best to explain you it well. You please are requested to read this chapter yourself too. The meanings of difficult words which I felt difficult, I have explained. Any other word, if you are feeling that it is difficult, then you can ask me at my personal number. I have shared with all my students, and you can ask me on my WhatsApp corner. The students who are not known to my number and want to connect me, please share your problems in the comment section. Thank you so much, and please try to sort out these question answers of the chapter. Thank you.